Morning students, this is Nilima Agrawal, your English mentor. Children, in your previous class, we have already discussed about Bipin Chaudhary's encounter with Parimal Ghosh at a bookshop, and Parimal Ghosh was trying to misguide him that he was an old acquaintance of him and they met at Ranchi. परिमल घोष उनको ये इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहते थे कि वो पहले मिल चुके हैं रांची में, और उससे रिलेटेड उन्होंने कई सारे इंसिडेंट्स उनके साथ शेयर किए हैं कि आपको राइट नी में चोट लगी थी और वही वो आयोडीन लेकर आए थे, और उन्होंने उनके लिए कार भी बुक की थी रांची में। और मिस्टर मुखर्जी के बारे में भी उन्होंने बताया था, जो कि अपनी बहन के साथ रहते हैं। और चूँकि उन्होंने यह भी बताया कि बिपिन चौधरी did not like to stay at hotel because he did not like to have food and accommodation of hotel. So he stayed with Mr. Mukherjee, who was living with his sister. And he had an argument also about moon landing with his sister. So he tried to make him realization that he was an his old acquaintance, वो उनके पुराने जान पहचान का व्यक्ति है. This way the lesson was studied by us. So after paying the amount of the book, he left the place and he was looking for his car, and he was totally utter disbelief. That means complete surprise that how the person was aware about his personal thing, because he had shared so many personal thing about him. Just like here, he was he had his brother who was died of insanity. उसका एक भाई था जो कि मेंटल डिसेबिलिटी के कारण उनकी डेथ हो गई थी. एंड ही हैड अ वाइफ ऑल्सो जिसकी डेथ 10 साल पहले हुई थी. और तीसरी जो पहचान उन्होंने बताई थी कि he had a he always carries a bag in which he used to keep some sightseeing trip books in that. So all these things he had shared with Parimal Ghosh. Parimal Ghosh has shared with Bipin Babu, and these things forced Bipin Babu to rely on him. So let us discuss the first question. Where did man stare at Bipin Babu in disbelief? Why did the man stare at Bipin Babu in disbelief? The man stared at Bipin Babu in disbelief because man wanted to make him understand that he was an old acquaintance of him. मैन इसलिए उसको देख रहा था कि वो बिपिन बाबू को ये बताना चाहता था कि वो उसका पुराना जान पहचान का व्यक्ति है, और बिपिन बाबू डिड नॉट ट्राई टू रिकग्नाइज हिम. वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58? बिपिन बाबू ने कहाँ का बताया था कि वो अक्टूबर 58 में कहाँ गए थे? अक्टूबर 58 में बिपिन बाबू कानपुर अपने एक फ्रेंड के यहाँ पूजा में गए थे. बट परिमल घोष उन्हें ये बता रहे थे कि अक्टूबर 58 में वे रांची गए थे. बट बिपिन बाबू रिप्लाइड दैट ही वेंट टू कानपुर टू अटेंड अ पूजा at his friend's house in October 58. Mention 3 things that Parimal knew about Bipin Babu. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें परिमल घोष ने बिपिन बाबू को इस बात का विश्वास दिलाया कि वो उनके पुराने जान पहचान के व्यक्ति हैं, और परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू? द फर्स्ट थिंग दैट ही ऑलवेज यूज टू कैरी a bag in which he used to carry some sightseeing trips book, and he had a brother who died of insanity, and he had his wife who died 10 years ago, and he did not have any children. So these things he shared with. In this page only you will get the answer of this last question. So let us discuss the second part of the book, part of this lesson, that is Bipin Babu car was safely parked in Burmantram Street by Lighthouse Cinema. Now he was totally utter disbelief. That means he was totally surprised. So he parked the car near the Lighthouse Cinema.
He told the driver that he got into the car, just drive by Ganga. He asked the driver to park the car by the Ganga. उसने बोला कि भाई गंगा के किनारे ले चलो. विल यू सीताराम. सीताराम वॉज द नेम ऑफ ड्राइवर. ड्राइविंग अप बाय द स्ट्रैंड रोड. धीरे धीरे वो गंगा किनारे पर पहुंचते हैं. स्ट्रैंड रोड के सहारे बिपिन बाबू रेग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. बिपिन बाबू को अपने आप पर बहुत पछतावा हो रहा था कि उन्होंने इंट्रूडर जो उनको डिस्टर्ब कर रहा था उस समय, विदाउट परमिशन ही एंटर्ड एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम. दैट मीन्स ही वॉज एन इंट्रूडर फॉर हिम. So he paid attention to that intruder. He was highly regretted. उसे बड़ा पछतावा हो रहा था कि मुझे ऐसे किसी भी व्यक्ति से बातचीत नहीं करनी चाहिए थी. He had never been to रांची. वो कभी भी रांची नहीं गए हैं और तो इस बात का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता. It was inconceivable that he should forget such an incident. ये उनके लिए बिल्कुल इनकन्विंसेबल था कि वो तो कभी रांची गए नहीं हैं. And that fellow was continuously trying to rely that they had met in Ranchi. और वो फेलो था जो परिमल घोष जिनका नाम था, वो कंटिन्यूसली उन्हें ये कोशिश कर रहे थे कि वे रांची में उनसे मिले हैं. विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago. और उनको इस बात को डाइजेस्ट करने में, इस बात के लिए कन्विंस होने में काफ़ी टाइम लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 6-7 साल पहले का इंसिडेंस वो भूल जाए. इट वॉज रियली इनकन्विंसिबल फॉर हिम टू फॉरगेट दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स. ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी. ही हैड अ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज मेमोरी कि उनको अपनी याददाश्त पर बहुत कॉन्फिडेंस था. अनलेस बिपिन बाबू हैड रील्ड. बिपिन बाबू हैड रील्ड मतलब ही वॉज शॉक्ड एंड कन्फ्यूज्ड. उसका सिर घूम रहा था. विपिन बाबू का सिर घूम रहा था. दैट मीन्स वो शॉक भी थे और कंफ्यूज भी थे कि उन्हें इतनी सारी पर्सनल डिटेल्स कैसे पता है और ये कैसे हो सकता है कि वो 6-7 साल पहले का इंसिडेंस भूल गए हैं. वॉज ही लूजिंग हिज माइंड. उनको बड़ा कन्फ्यूजन रहा कि क्या उनका लाइक इज ही रियलाइजिंग द लॉस ऑफ मेमोरी. बट हाउ इट कुड बी. उसकी दूसरे ही पहलू पर उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है. ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस एंड इट वॉज अ बिग फर्म. यदि ऐसा होता तो सिर्फ वो एक ही इंसिडेंस कैसे भूल सकते थे. उनकी काफ़ी बड़ी फर्म है और ही वॉज डूइंग रिस्पॉन्सिबल जॉब ओवर देयर. और वहाँ पर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे हैं. ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग. और इतनी सीरियसली रॉन्ग वहाँ पर उन्हें उनके ध्यान में ऐसी कोई चीज़ नहीं की जिसमें इतना उन्होंने गलत किया हो. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड येट. और आज ही के दिन आधे घंटे तक बिना मिस किए हुए पॉइंट वो कंटिन्यूसली आधे घंटे तक एक मीटिंग में बोले. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 6-7 साल पुराना इंसिडेंस वो भूल जाएंगे. ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज मेमोरी. लूजिंग माइंड मीन्स बिकमिंग मैड. क्या वो पागल हो रहे हैं. लूजिंग माइंड, क्या वो वाकई में पागल हो रहे हैं. ही गॉट रियली कन्फ्यूज्ड एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम. और ही वॉज वेरी confused that how can a man knew about a great deal of him. उसके बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैसे पता चली. he even seemed to know how intimate details, how very personal detail person was able to know about him. The bag of books, wife, dads and brothers insanity, these three things is very personal to him. How he could know about these incidents. The only mistake was about his having gone to Ranchi. He was only mistaking that his visit to Ranchi, not a mistake, a deliberate lie. और उन्होंने बोला कि ये मिस्टेक ही नहीं थी, एक जानबूझकर बोला गया झूठ था. इंटेंशनली ही वॉज स्पीकिंग लाई. In 58 during pujas, he was in Kanpur at his friend's house. He was very confident that in October 58 he was at Kanpur with his friend to attend puja. Haridas Bakchi's place. All Bipin Babu had to do was to write
Then Bipin Babu decided to write to his friend to whom he visited in October 58. उन्होंने फाइनली सोचा कि भाई चलो मैं उन्हें एक पत्र लिखता हूँ और पता करता हूँ कि क्या वाकई में आपके यहाँ पूजा में आया था 58 में. पर फाइनली ही केम टू नो दैट देर इज़ नो वे टू राइट Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas has left his wife for Japan. हरिदास और उसकी पत्नी दोनों जापान के लिए पिछले कुछ वीक पहले ही जापान शिफ्ट हो गए हैं. एंड उनके पास उनका कोई एड्रेस भी नहीं था. बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ. अचानक उनके दिमाग में आता है कि प्रूफ की क्या ज़रूरत है. ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर दैट ही डिड नॉट बीन टू रांची. उनको पूरा कॉन्फिडेंट था कि वो कभी रांची गए ही नहीं हैं. एंड दैट वाज दैट. उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो रांची कभी नहीं गए हैं. द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड. माना कि दिमाग का एक हिस्सा उन्हें इस बात पर जोर डाल रहा है कि वे कभी रांची नहीं गए हैं, पर उसी समय उनका माइंड इस बात से स्टिमुलेट हो रहा है. बार बार इस तरह के दिमाग में उनके ख्याल आ रहे हैं. And that's why he felt discomfort in his mind, and discomfort was lingered. मतलब उनके दिमाग में डिस्कम्फर्ट है. वो पूरी तरह से इस बात से संतुष्ट नहीं है कि वे रांची नहीं गए थे. अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी. अचानक उनके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं अपनी राइट नी को चेक करता हूँ. पैंट को उन्होंने रोल अप किया और राइट नी को चेक करने लगे. देयर वॉज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट. उन्होंने क्या नोटिस किया कि उनके राइट नी पर एक इंच का मार्क, कटे हुए का निशान है और काफ़ी पुराना निशान है. इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड. और वाकई ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि ये इंजरी कैसे को हुई थी. सो इस प्रकार वे कंफ्यूज थे. और रेस्ट ऑफ द लेसन we will continue tomorrow. Children, read the lesson very carefully and try to understand it, and write the difficult words of the lesson in your copy. Thank you very much.